Okay, a very good morning to all of you and welcome back. And today is a different day because we have a joint combined class. I think Divakar sir is not available today. It's a combined class. Because I think we had one combined class in class 11th also, if you remember. And probably it's the second opportunity or maybe the third opportunity. I don't remember, probably second, isn't it? Well, good morning messages from Aryan, Parth, Krishna, I don't know who, Harshit, Ansh, Dhruv Bhardwaj, and so on. Chalo, so like, I think we are at different points. So like, I think शायद B में कुछ और topic चल रहा है और A में कुछ और topic चल रहा है. तो like, it's very difficult to have a merge class with combined or same topic. I mean, which is in continuity. इसलिए मैं एक काम करता हूँ. मैं एक छोटा सा टॉपिक ऐसे उठा लेता हूँ. So I'm going to take up a small topic, which we can more or less finish today. It's a very small topic, and at least एक topic भी खत्म हो जाएगा. ठीक है ना? Today we're going to talk about photoelectric effect. यानी photoelectricity. ठीक है ना? So we're going to talk about photoelectric effect, which in other words means photoelectricity. Now, if you look at the development of science per se, and especially if you look at the development of physics per se, there have been many jets and spurts, I mean, in the sense that the development of science, or maybe you can say specific for physics, I mean, has happened like this, and then over a period of time, it has got little stymied also, in the sense that it almost got saturated. Then suddenly some break happened, and then it suddenly started rising up. So this has been the growth of science in general, and also physics, which follows almost the same trend, I mean, in particular. अभी जेट्स एंड स्पॉट्स क्या है ना, देखो कभी कभी ना कुछ एक नया डिस्कवरी आ जाता है जिसके वजह से एक पूरा नया एवेन्यू खुल जाता है. आई रिपीट, कई बार कुछ डिस्कवरीज ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से कुछ नया एवेन्यूज खुल जाता है. नाउ व्हाट डू मीन बाय दैट? इट मींस कि कोई नया एरिया हम लोगों के सामने आ जाता है और फिर हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करने लगते हैं, और उसके वजह से क्या है ना, साइंस को एक पुश मिलता है, और कोई पर्टिकुलर एरिया को अगर पुश मिलता है तो जनरली इट हैज अ कैस्केडिंग इफेक्ट आल्सो, कि बाकी एरियाज को भी जनरली कहीं ना कहीं उसका एक इन्फ्लुएंस दिख जाता है. ठीक है ना? So that's more or less the way science has grown in general and physics in particular. ठीक है ना? So before this, I mean, this photoelectric effect has two interesting history behind it. Number one is that before this effect was discovered, it was believed that the energy of light will depend on the intensity. Okay, or you can say the amount of light. Now, let me explain what I exactly mean by that amount of light. जैसे मान लो, suppose एक metal plate. अच्छा, metal plate में क्या होता है? Electrons थोड़े से free होते. You know that there are free electrons, and therefore those electrons sometimes can be taken out of the metal. ठीक है ना? Those electrons can be sometimes taken out of the metal. इसको हम लोग कहते हैं emission. Now this emission can be done in more or less, you can say, three different ways. So today we are going to begin with what is called as electron emission. अब इलेक्ट्रॉन एमिशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मेटल में से बाहर आना. वेरी सिंपल, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. इलेक्ट्रॉन का मेटल में से बाहर आना. That's in brief about electron emission. Now this can happen in more or less three different ways. Okay, and the different ways are, the electrons can come out in three different ways.
Number one, by what is called as thermionic emission. Thermionic means what? Emission because of heat. So if you heat a metal, the electrons have more and more energy, and thereby it can lead to what is called as thermionic emission. Okay. Second is called as field emission. Field emission means what? If you put a metal, let's say, in a very, very strong electric field, it has to be a very strong electric field, however, then also, because see, the electric field then will then act on the electrons also of the metal. So the electrons will be pushed or rather pulled, and thereby maybe a stage might come when the electric field is very strong, that electrons start coming out of the metal itself. So that is what is called as field emission. The third is what we are going to discuss today, and that is called as photoelectric emission. Okay. The third is photoelectric. Okay. Now, photoelectric means what? Photoelectric means that if you put light on a plate, light has energy. So energy will be transferred to the electrons, and thereby maybe those electrons can come out of the plate, and that will be called as photoelectric emission. So three types of emission. Okay. One is due to heat. Second is due to strong electric field, and the third is because of light. So light has to give its energy to the electrons, and thereby the electrons will have so much energy that they can even venture to come out of the metal. That will be called as photoelectric emission. Now, for that to happen, because see, the electrons are finally, remember, a part of the metal, and they are being held together, or rather held to the metal by the atoms. Though they are little free, electrons, I mean, because of the last shell having little less attraction, but still they are a part of the metal and the part of the atom itself. So therefore, it's not so easy to bring out the electron as such. इसलिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ एनर्जी देना पड़ेगा. So one of the ways of energy giving is what? Through light. So that's okay. Now here comes the part where I won't say it changed history, but to some extent it changed the opinion and the viewpoint that was existing at that point regarding light. Now what was the viewpoint? The viewpoint was that the energy will depend on the amount of light. Listen carefully. The energy will depend on the amount of light. Now what do you mean by amount of light? Let us say there is a metal. So according to the classical theory of light, let's understand what happened. According to the classical theory of light, let us say I put a torch on. So I have a torch. I put a torch on, and the light goes to the metal. Let us say no electron is coming out. So what could be a reason? Reason is that the energy given by the light of the torch is not sufficient. So try to understand. It means that the energy given by the light of the torch is not sufficient to bring out electrons from the metal. I think it's a very easy conclusion. So what I now do is that, because in this experiment the light was not successfully bringing out electrons, so what I now do is that I switch on another torch. So another torch like this. Similar time. So more light is coming. Now if I go to the classical theory of light, the energy of light depended on the amount of light. So I have increased the amount of light. So the energy should increase, and therefore now electrons should come out. Now, this is what the theory says. However, when the experiment was actually done, I will repeat, when the experiment was actually done, nothing of that kind happened. Means no electron came out. So you might be thinking, ki chalo theek hai, maybe not for 2, maybe for 3. Who knows? So if not 2 for 2, then maybe for 3. So what was done was that another torch was put on, and the experiment was conducted more and more. But what was found out was that if one torch was not able to bring out electrons from a metal, no amount of lighting up torches, whether it is 20 torches or 3 or 40 torches, doesn't matter. No electron comes out. Now, if I go to the classical theory of light, as you are increasing the number of torches, so more and more amount of light is falling on the metal plate. So at some stage, electrons should come out. But unfortunately, nothing of that kind happened. So people were not really able to explain what exactly went wrong. However, if let us say when only one torch was on, so let's say only one torch was on.
and let's say electrons are coming up. What does that mean? That means that one torch itself had so much of energy, or rather the light of that torch itself had so much of energy that electrons could come out. Then it was found out that let's say if I light up two torches, okay, two here, then more number of electrons came out. So there were all these experiments were not very clear to the scientists at that time what exactly was happening or not happening. So according to the scientists of that time, things were not very clear as to what was happening and not happening. It was not very clear actually. So chalo koi baat nahi. I mean the efforts went on, not that the efforts were stopped. I mean, finally, what came up was the idea of the corpuscular theory of light. So the new theory that came up at that time was called as corpuscular theory means particle theory. That means now light was taken up or treated as a particle or other collection of particles called as photons. And because photons are individual entities, okay, so what happens was that, or what happens is that, let's say there's an electron, one photon comes, interacts with the electrons, and then whatever is to happen or not happen will be decided according to that interaction. Now try to understand. Let's say there are 100 photons, or let's say there are 500 photons. Doesn't make a difference as far as this electron is concerned. Okay, so that means this thing has now started. So next time anything of that kind happens, then we will see what else can we do. Chalo. So therefore, चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम. तो मैं चलो ठीक. चलो anyway, let's carry on. हाँ, तो जो मैं कह रहा था is that, so what will happen now is that the only way you will be able to communicate is now is through messages. At least as of now, till the time things become better. So anyway, the first thing is that, as I was saying, that when it comes to electrons, they are all inside the metal, and when it comes to photons, they will actually strike the surface of the metal and maybe a few layers below it. So they were actually physically, theoretically, you can remove as many number of electrons as you can. I'm answering to the question that have just come up, but practically it won't be feasible. Practically, what will be happening is that there will be a stage where it will not happen, and there are multiple reasons for that. You will understand just in a short while from now. थोड़ा सा और रुको, पहले इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. यानी अब अगर मान लो एक फोटोन के पास, यानी एक अब इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन, अब यही इंटरेक्शन हो रहा है बस. और क्या ना, ये जो इलेक्ट्रॉन और फोटोन का इंटरेक्शन है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन और फोटोन का जो इंटरेक्शन है, ठीक है ना, यही डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या नहीं निकलेंगे. तो यू माइट से क्यों, ये कैसे डिसाइड करेगा? ये डिसाइड इस तरीके से करेगा कि देखो, अब जैसे मान लो तुम कुछ भी ले लो, जैसे मान लो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक फैन है और फैन का एक ब्लेड, ठीक है. मैं क्या करता हूँ, फैन के ब्लेड को, जैसे मान लो ये ब्लेड है, तो मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे हिट किया, तो कुछ नहीं हुआ और कुछ होगा भी नहीं. क्यों? व्हेन आई एम हिटिंग जस्ट कैजुअली लाइक दिस, ये कोई फोर्स थोड़ी हुआ कि एकदम से ब्लेड पे कुछ असर हो जाएगा.
मे बी थोड़ा सा फैन हल्का सा घूमने लगे. But let's say I have a huge cloud kind of a rod, iron rod, and I hit it at the point where it is attached to the fan with huge force. तो क्या होगा? वो ब्लेड ही शायद उखड़ के बाहर आ जाए. आ सकता है ना? पर उसके लिए मुझे फिर एक मिनिमम एनर्जी देके उसको हिट करना पड़ेगा. Without that नहीं हो पाएगा. So the same is happening with the photons also. It's not that the electrons are just casually attached to the metal and therefore you just give it some push and the electrons start moving out of the metal. ऐसा तो नहीं है ना? Ultimately it belongs to the metal. And it is a part of the atom of the metal, whether it is iron or copper or zinc or whatever. So therefore electrons को hold करके रखा है. Relatively free है इसलिए move करते रहते हुए क्या लगता है. अब अगर मान लो मैंने कुछ एनर्जी दिया और वो एनर्जी अगर बहुत कम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएंगे, और अगर वो एनर्जी काफी ज्यादा है तो ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है. नाउ आंसरिंग अ क्वेश्चन कि क्या हम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं, वेल द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज अ लिटिल डिफरेंट. वो कैसे आंसर करेंगे, ठीक है ना. वो आंसर इस तरह से करेंगे कि देखो, the moment you have some electron, let's say, coming out, now there are few things that will happen. Because there's an atom, so there will be a positive charge atom left behind. And remember, it's not that only one electron comes out. There's a huge bulk of electrons that come out. If there's a huge bulk of electrons that come out, as they come out, okay, then there will be a lot of positive charges left behind. So these positive charges actually, okay, now there is a student, Bhabhay. Is Bhabhay a part of the batch? Who's trying to enter? Well, there are some questions that are coming up. Maybe I can just okay, let me now take up the questions, I mean, and Bhavya, because your group mates are not allowing, to like I'm not allowing him right now. ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं. So there are some questions. Question number one is that Gaurav, question is that when then why were we not able to get electrons with multiple lights? देखो multiple lights में क्यों नहीं कर पा रहे थे उसका मैं एक्सप्लेन थोड़ी देर में दे रहा हूँ. Krish has asked कि Krish has asked कि एक इलेक्ट्रॉन पर दो फोटोन क्यों नहीं अटैक कर सकते. You know what, जिस स्केल पे या जिस मिनिस्क्यूल स्केल पे चीजें होता है ना, the probability of electron or an electron being hit simultaneously by two photons is negligible. I will give you some kind of a comparison. एक कंपैरिजन कुछ इस तरीके से होता है, is that एक एटम को थोड़ा सा इमेजिन करो. एक एटम को अगर मान लो या उसका न्यूक्लियस को अगर तुम एक वो समझते हो, कॉस्को बॉल सपोज, तो ये माना जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो होंगे वेरी स्मॉल मार्बल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर फ्रॉम द कॉस्को बॉल. अब स्केल समझ रहे हो ना, स्केल समझ रहे हो ना. और फोटॉन्स होगा कुछ मार्बल्स में. तो अगर मान लो तुम एटॉमिक स्केल को बड़ा करके विजिबल स्केल के अंदर देखना चाहोगे तो देखना एक एक फोटोन या जो मल्टीपल फोटॉन्स है ना, उनके बीच के गैप देख, उनके बीच में गैप पता है कितना होता है, ह्यूज गैप, ह्यूज गैप. Therefore, साइमल्टेनियसली हिट करने का प्रोबेबिलिटी लगभग जीरो. साइमल्टेनियसली हिट करने का प्रोबेबिलिटी लगभग समझ लो कि जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो. तो therefore अच्छा भव्य NM2 में है, चलो ठीक है, देन आई एम गिविंग द एंट्री, नो प्रॉब्लम. ठीक है ना, आई एम गिविंग द एंट्री, नो प्रॉब्लम.
चलो, तो साइमल्टेनियसली उसके हिट करने का प्रोबेबिलिटी लगभग नील है। तो देयरफॉर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को हिट करेंगे और उसी में इंटरेक्शन में डिसाइड होगा कि वो होगा या नहीं। अच्छा, नाउ आंसरिंग द प्रीवियस क्वेश्चन कि अगर ज्यादा टॉर्च लाइट हम अगर करते हैं तो क्यों नहीं हो पाए ना। देखो, अल्टीमेटली इंटरेक्शन तो एक फोटोन से होना है। अगर मान लो उस फोटोन के पास एनर्जी सफिशिएंट नहीं है, राइट टू अंडरस्टैंड, अगर उस फोटोन के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है, इन दैट केस वो होगा ही नहीं, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही। तो देयरफॉर अब अगर मान लो तुम दो टॉर्च ऑन कर दो तो एक एक फोटोन के पास तो फिर भी कम एनर्जी है, तो इंटरेक्शन के अमाउंट बढ़ जाएगा। पहले अगर एक सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन और फोटोन इंटरेक्ट कर रहे थे तो मे बी अब एक सेकंड में 20 करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन लेकिन दिक्कत क्या आएगा, दिक्कत इस बात पे आएगा कि उसके पास एनर्जी नहीं है उतना कि वो उसको वो कर पाए, एनर्जी निकाल पाए। ठीक है ना, एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम होती है। तो देयरफॉर जस्ट बिकॉज की इलेक्ट्रॉन है और फोटोन हम डाल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। यानी कहने का मतलब ओवरऑल क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। So now we are talking about what is called as threshold energy. अब थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी चाहिए होगा, है ना। तो therefore we will say कि E naught is equal to h nu। तो ये h nu naught क्या है, तो ये h nu naught हो गया एनर्जी, मतलब h nu naught is the energy of the photon which will be finally bringing out the electron। अगर इतना कम से कम एनर्जी दिया जाए तो, बट इससे क्या होगा, जस्ट एनर्जी निकलेगा, ठीक है ना, जस्ट एनर्जी दिया जाएगा जो मतलब सफिशिएंट है जिससे कि इलेक्ट्रॉन जस्ट निकलेगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर दिस विल बी कॉल्ड एज द थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड दिस विल बी कॉल्ड एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नाउ हैव अ लुक, आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट what would happen, let's say, if we give energy more than this? So that's the question, ठीक है ना। What would happen, let's say, if I give energy more than this? ठीक है, so obviously what will happen is that if I give energy more than this, then what will happen, then electrons will come out with energy, kinetic energy, है ना। तो यानी अब क्या हो गया, if let's say h nu that we give is greater than this, then the electrons will come out with some extra energy, क्योंकि extra energy मिल गया तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एनर्जी लेके निकलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो इसके ऊपर भी थोड़ा सा हिस्ट्री है ना। हिस्ट्री ये है कि यू नो हिस्ट्री ये है कि इस पूरे फिनोमेना का डिस्कवरी किसने किया था, हर्ट्ज ने। सो ऑल दिस वाज डिस्कवर्ड, दिस वाज एक्चुअली डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज। लेकिन इंटरेस्टिंगली क्या हुआ, लेकिन इंटरेस्टिंगली क्या हो गया इज दैट हाँ क्रिश यू आर राइट, एक और साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व थे लियोनार्ड नाम से, बिल्कुल सही। हाँ, तो जो मैं कर रहा था वो सुनो, इज दैट if let's say h nu is greater than h nu naught, then what will happen is that the reserve difference will come out in the form of kinetic energy. अब इंटरेस्टिंगली क्या हुआ, as I said, this photoelectricity was discovered by Hertz, फिर उन्होंने काफी कुछ इस पे काम भी किए थे, लेकिन इसके जो नोबेल प्राइज है वो दिया गया आइंस्टाइन। अब आइंस्टाइन ने क्या किया, देखो आइंस्टाइन बहुत लॉजिकल चीज बताया कि अगर तुम एनर्जी देते हो इतना, उसमें से थ्रेशोल्ड वाला माइनस कर लो, क्योंकि थ्रेशोल्ड तो चाहिए उसको जस्ट निकालने के लिए, है ना। थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए उसको निकालने के लिए, तो यानी एनर्जी इतना दिया
माइनस इतना उसको निकालने के लिए चाहिए, तो देयरफॉर जो रिजर्व एनर्जी है या जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो बाकी एनर्जी है, वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकलेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू ई। हाउएवर अब इसमें भी एक कैच है, ठीक है ना। इसमें कैच क्या है, देखो कैच ये है कि will it be exactly equal to the energy? The answer is interestingly no. Exactly energy नहीं हो, तो फिर क्या होगा, जनरली ये हो जाएगा उसका ke max. So we will write it as ke max. Now you might say what is the logic? I'm just coming to the logic. मैं थोड़ा सा इसका हिस्ट्री बता देता हूँ. इस दैट एक्चुअली हो क्या रहा था बताता हूँ मैं. उस जमाने में हर साल जब नोबेल प्राइज की लिस्ट निकलता था ना, तो न्यूज़पेपर्स में हेडिंग में तो ऑब्वियसली वो आता ही है that this so and so scientist have won the Nobel Prize. चलो, there is nothing surprising in that. उसमें कोई दिक्कत नहीं. लेकिन साथ में इंटरेस्टिंगली एक और चीज भी निकलता था. क्या कि इस साल भी आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज नहीं दिया. So every year there would be two headlines because Einstein was so famous at that time worldwide. Every year like this is the person or these are the group of persons who won the Nobel Prize because of so and so and so. चलो ठीक है. फिर एक और हेडलाइन ठीक उसके नीचे होगा, एक और न्यूज आइटम में, न्यूज़पेपर्स की बात कर, जिसमें लिखा रहेगा कि लाइक यू नो दिस ईयर आल्सो आइंस्टाइन फेल्ड टू गेट द नोबेल प्राइज. अभी हर साल. अच्छा, नाउ यू माइट से ऐसे क्यों होता था. एक्चुअली ऐसे होने के पीछे रीजन था. रीजन ये था कि दिक्कत पता क्या होता था कि हर साल जो कमिटी बैठते थे स्विट्जरलैंड में उसका नोबेल प्राइज डिसाइड करने के लिए, लेट्स कैरी ऑन नाउ. जो मैं कह रहा था इज दैट नाउ every year that would be the same thing and that is कि आइंस्टाइन को इस साल भी नहीं मिला, इस साल भी नहीं मिला. तो like it would become some kind of a ironical thing. I mean कि इतने बड़े साइंटिस्ट को नहीं मिल रहा और अननोन कुछ साइंटिस्टों को मिलता जा रहा है. तो उसके पीछे रीजन क्या था. रीजन ये था कि उसके पहले ना एक दो और ऐसे इंसिडेंट हुआ था जिसमें कुछ साइंटिस्टों को नोबेल प्राइज दे दिया गया और बाद में उनके थ्योरीज काफी डिस्प्यूट में आ गए. तो therefore साइंटिस्ट जो कमिटी बैठते थे ना, they used to be very cautious. क्यों? क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना, कुछ चीजें बड़े एडवांस्ड होते हैं और वो बाद में जाके कुछ ना कुछ वजह से उसमें डिस्क्रिपेंसीज आने लगते हैं. अब इस चीज को पहले से जज करना भी कई बार मुश्किल होता है. अच्छा, आइंस्टाइन के जो थ्योरी थे वो इतने कॉम्प्लेक्स थे, समझ ना. आइंस्टाइन के जो थ्योरी थे वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि उनको समझ में नहीं आता था. मतलब ज्यादातर साइंटिस्टों को समझ में ही नहीं आता था. तो अब वो किस हिम्मत से देंगे फिर कि भाई जो चीज समझ में ही नहीं आ रहा है वो कल को कोई गलत साबित हो जाए तो लोग तो उल्टा मजाक उड़ाएंगे कि देखो नोबेल प्राइज दे दिया और वो तो पूरा चीज ही गड़बड़ है, तो क्या वापस लोगे प्राइज. पॉसिबल नहीं था. तो देयरफॉर साइंटिस्ट यूज्ड टू बी वेरी कॉशियस, द कमिटी व्हिच यूज्ड टू डिसाइड द नोबेल प्राइज. और आइंस्टाइन का थ्योरी इतना एडवांस की तो इतना अल्ट्रा कॉशियस कि बाप रे पता नहीं कल को कुछ हो जाएगा. वैसे भी आइंस्टाइन के थ्योरी के उनके जमाने में ज्यादातर मजाक ही उड़ाया जाता. बोलते अरे क्या है ये सब ऐसे ही पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं. तो नोबेल प्राइज नहीं दे रहे थे. लेकिन ये एक छोटा सा अचीवमेंट था. अगर आइंस्टाइन का टोटल आउटपुट अगर 100 है तो ये जो इक्वेशन आइंस्टाइन के इक्वेशन से नाम से जाना जाता है, दैट वुड नॉट बी इवन वन. इमेजिन करो. लेकिन उसके ऊपर नोबेल प्राइज दे दिया तुरंत उसके ऊपर जो है नोबेल प्राइज दे दिया. आर यू गेटिंग इट? सो दैट वाज द स्टोरी. यानी आइंस्टाइन को इस इक्वेशन के लिए नोबेल प्राइज दे दिया गया. बाय द वे आइंस्टाइन के इस इक्वेशन के पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक बड़ा सिंपल है कि इतना फोटोन का एनर्जी है, इतना थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए, जो बाकी होगा वो के हो जाएगा. यानी नाउ इट वाज नॉट रिटन के, इट वाज रिटन के मैक्स. नाउ यू माइट से मैक्स क्यों लिखा? मैक्स इसलिए लिखा क्योंकि जरा सोचो, ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहां से निकलता है तो यहाँ पे पीछे एटम पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि एटम न्यूट्रल था पहले. अब इलेक्ट्रॉन अगर मटेरियल में से निकल जाते यानी पॉजिटिव रह गया ना, तो won't these atoms try to pull back the electron? यानी इलेक्ट्रॉन जितना तेजी से निकलना चाहता था उससे हल्का सा कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि एटम्स उनको पुल बैक करेंगे. दैट्स पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इज दैट
it's not necessary that the surface electrons will come out. सोचो, it's not necessary that the surface electrons will come out. So it's quite possible that maybe some electron from inside has come. तो उसके तो बीच में atoms भी है, तो obstructions भी होंगे, तो उससे भी उसका एनर्जी जो है थोड़ा सा कम हो सकता है. That's reason number 2. ठीक है ना? यानी K max या Ke is generally less than K max. Now why is it so? Reason number one is that back pull by atoms, फिर lattice obstructions, है ना? जो लैटिस स्ट्रक्चर है एटम्स के, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकलना है, तो ऑब्स्ट्रक्शंस होंगे, तो कई रिड्यूस हो सकता है. Third is also another point, and that is, third point is basically when let's say few electrons have already moved out. तो मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुका है ना, अब जब फ्रेश इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन सामने ऑलरेडी है, won't they repel the fresh electrons that are trying to come out? है ना? So therefore these are the three main reasons why you will see that K max is generally, K is less than K max, and that is repulsion by those electrons who have already come out of the material. Are you getting it? So these are the things that might happen, which might lead to a situation where the K of the electrons will be less than what this K max will predict. So that you can understand now. अब देखो क्या है, कि ये जो काइनेटिक एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन्स निकला है, ये जो काइनेटिक एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, सपोज मैं कहता हूं कि इनको स्टॉप कर दो, तो कैसे स्टॉप करोगे? Now one way is what? By applying a physical obstruction. But मान लो मैं उस तरीके से नहीं करना चाहता हूं. Suppose I want to apply an electric field and then stop them. तो electric field कैसे दिया जाए? Through a potential difference, है ना? तो अगर मान लो K max को रोकना है, तो क्या होगा ना, कुछ वर्क डन कर लो उसके खिलाफ. वर्क डन मतलब होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, सो E into Bs, so therefore we get something called as Bs in stopping potential. क्या होगा? K max by E. और K max अभी हमने निकाला था, कितना था? H into mu minus mu naught by E. So this is the stopping potential. कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू ले जाना पड़ेगा so that the electrons are stopped. ठीक है? That is the idea of stopping potential. Okay. So now we have made some formulae ready. I think now it's time to start solving some questions. यानी अगर मैं एक शॉर्ट समरी दूं तो क्या होगा, देखो, है ना? सक्षम इज आस्क्ड कि ये तो K एमिशन के नेक्स्ट इंस्टेंट पे होगा ना, बाद में तो कुछ भी हो सकता है. बिल्कुल सही बात. बाद में तो ट्रेजेक्टरी कैसे होगा, किस तरीके से जाएंगे, नो वन नोस. और कोई एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अकेला थोड़ी एमिट हो रहा है. इट्स अ collection of electrons which has K max equal to as per the figure, the mathematical value. चल, ठीक है. Now he's asking, Saksham is asking कि तो फिर तो K max C हो जाएगा ना? नहीं, K max फिर भी नहीं होगा, क्योंकि देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से निकलना चाहता है, तो अगर मान लो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, तो जिस वक्त निकलना चाहता है वो, ठीक है ना, उस वक्त भी तो उसका रिपल्शन होगा. और अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज एटम है तो वो भी उसको इधर पुल करेगा. तो देयरफॉर K max भी K भी K max से मोस्टली कम ही होगा. ठीक है ना? हाँ, एकदम स्टार्टिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनके काइनेटिक एनर्जी लगभग K max होगा. That can be probably said. That can be possibly said. ठीक है ना? That would be approximate. Sure.
इसमें तो पूरे टाइम यही चलता रहेगा लग रहा है। एक और आ रहे हैं अभी, तनिष्का भाटिया नाम से। एनीबॉडी देयर? तनिष्का भाटिया या नहीं है? चलो, नाउ आई थिंक इट्स टाइम टू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस. Just inform me if there is somebody, Tanishka Bhatia. Okay. नहीं, मैं एनएम मतलब सेकेंड बैच का पूछ रहा था. चलो, anyway, let's suppose say that we start with a very simple question, and that is, suppose I say that the threshold जो एनर्जी है, कई बार वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया जाता है. तो लेट अस से द थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है? So threshold energy is equal to 2.1 electron volt, and the light that is coming up, okay, is suppose 2000 angstrom. अब देखो यहाँ पे ये जो लाइट अगर एंगस्ट्रॉम में या नैनोमीटर में दिया हुआ है, तो उसको डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट करने का क्या तरीका? तो देखो, ये जो एनर्जी होगा वो क्या होगा? एच सी बाई लैम्डा. बट एच सी बाई लैम्डा से अगर करते हो तो दैट विल गिव यू द एनर्जी जूल्स. लेट अस से वी ट्राई टू वी वांट टू कन्वर्ट इट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे उसको डिवाइड करना पड़ता है 1.6 into 10 to the power minus इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, है ना? आई थिंक दैट्स प्रीटी सिंपल. अच्छा, इसके अंदर देखो एच और सी तो कांस्टेंट है ना, these are constants, so we can easily put the value of Planck constant and also speed of light and also this value. तो finally combine करके एक combined value बनता है, and that is approximately equal to 12,400 by lambda in angstrom units. ठीक है? So that is an approximate value. कि अगर मान लो तुमको किसी लैम्डा दिया हुआ है, किसी का लैम्डा दिया हुआ है एंगस्ट्रॉम यूनिट्स में, और उसको कन्वर्ट करना है सपोज इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो दिस इज हाउ यू कैन डू द कन्वर्जन. ठीक है? तो क्वेश्चन इज, इन दिस केस, फाइंड A max. Okay, जल्दी करो. आई थिंक इट्स एन इजी क्वेश्चन टू स्टार्ट ऑफ विद. चलो, पिछला वाला तो काफी इजी था बिकॉज देयर वाज लाइक ऑलमोस्ट नो कैलकुलेशन, है ना? अब क्या करेंगे? Okay, Sushant has given an answer, and that is
maximum 2.4 and minimum is 1. Okay. Any other answer? Well, there are different answers now. Garv has given 5.2, 1.4. Arihant has given maximum 5.2. Parth 2.4 maximum. Aditya says 0 and 2.4. Saksham says 5.4 and 4. Well, a lot of interesting things. Nandini, you had just done a raise hand, so like maybe you can just message me what you wanted to say. चलो ठीक है, मैं इसका आंसर देता हूँ. ठीक है, मैं इसका आंसर देता हूँ. देखो, सबसे पहली बात तो इसका एनर्जी कितना आया था? 12,400 by 2,000, याद है ना? तो आया था 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यानी इस बार जो के मैक्स होगा, ठीक है ना, इस बार जो के मैक्स होगा वो हो जाएगा 6.2 minus 2.4. ठीक है ना, यानी 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब सुनो, इसके अंदर पता है क्या हो रहा है? जरा ध्यान से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, ये इंपॉर्टेंट है. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेंगे, है ना, और फोर्स देंगे. और फोर्स किस तरफ देंगे? इस तरफ. ठीक है ना, कितना देंगे? है ना, कितना देंगे? उतना देंगे जिससे कि वो 1.4 का 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क डन कर सके. ओके नंदिनी, योर आंसर इज करेक्ट. ठीक, आंसर बिल्कुल करेक्ट. तो यानी 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पुश मिले, ऐसे एक सिचुएशन हो रहा है. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स उधर होगा, तो एक पुश उस तरफ मिल रहा है. अच्छा देखो, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसका रेंज क्या होगा? The range of the kinetic energy that it will come out is 3.8 and 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्योंकि कुछ जीरो वाले भी तो होंगे, कुछ 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले भी तो होंगे. तो जो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी वाला होगा, वो 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आगे बढ़ के फिर यानी 1.4 पे हिट करेंगे. तो ये 0 वाले का एनर्जी बढ़ जाएगा, क्योंकि इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, फोर्स उधर है, तो ये बढ़ के हो जाएगा 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और जो 3.8, अगर कोई 3.8 का होगा तो उसका भी क्या होगा ना, 1.4 बढ़ जाएगा. तो यानी इसका भी 1.4 बढ़ जाएगा. So it will become equal to now 5.2 electron volt. Yani the minimum energy with which the electrons will hit the wall is equal to 1.4 electron volt, and the maximum energy with which the electrons will hit the wall will be equal to 5.2 electron. Just have a look. यानी रेंज क्या हो गया? 1.4 से लेके 5.2. देखो ठीक है. तो therefore quite a few answers are correct. Arihant ने भी बाद में सही कर दिए. Nandini has given the right answer. Dhruv has given the right answer. गर्व ने पहले आंसर दिए थे. ठीक है, अब ना मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता हूं. चेंज क्या करता हूं, इसको तो वही रख दो, या एक काम करो, इसको कर दो 4000 एंगस्ट्रॉम, एंड दिस टाइम द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज रिवर्स. ठीक है, और इसका जो ये हो गया सपोज 0.4 इलेक्ट्रॉन, थोड़े चेंजेस किया गया. ये 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है,
ये 4000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, और बाकी देख लो एक बार। Ariyant, the electrons that are emitted are all perpendicular to the surface. ठीक है ना? अब दोबारा कैलकुलेशन करके फिर से आंसर दो कि इस बार के मैक्स क्या हो जाएगा। मतलब what will be the range of kinetic energy with which the electrons hit the wall? Find the minimum and maximum. पिछले बार का तो समझ में आ गया होगा। All the answers are coming up. Garv has given an answer. Ariyant has also given an answer. 0, 1.3. Garv has given the answer as 1.3. Parth has given 0 and 1.3. Sushant 0 and 1.3. Sagarika also 0 and 1.3. Dhruv has also given 0, 1.3. चलो ठीक, आई थिंक दैट्स ओके नाउ, क्योंकि इस बार 2000 की जगह 4000 हो गया, तो यानी पिछले बार का जो डेटा था उसका आधा, यानी ये हो गया 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी जो लाइट आ रहा है उसका जो एनर्जी होगा वो होगा 3.1 इलेक्ट्रॉन। दैट्स द फर्स्ट थिंग। और उसमें से देखो 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यहाँ पे हो रहा है थ्रेशोल्ड, तो उतना तो माइनस हो जाएगा, यानी जो रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी आएगा वो आएगा 0 to 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0 to 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यानी इस बार ऑपोजिशन होगा, यानी इस बार जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकलेगा और जो वहां पे पहुंचेंगे उसमें 1.4 कम हो जाएगा, 1.4 कम होगा। तो देयरफॉर ये जो जैसे मान लो कोई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके निकला, वो तो पहुंचेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो पहली बार पहुंचेगा वो है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला इलेक्ट्रॉन, वो सीधा यहाँ पे जाके 0 पे पहुंचेंगे, तो इसलिए 0 वाला तो इस बार पहुंचेंगे ही नहीं। एक 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वही पहुंचेंगे पहली बार, वो पहुंचेंगे 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, ये तो पहुंचेगा भी नहीं। 0 मींस एनीथिंग ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1.4, वो तो पहुंचेंगे ही नहीं, ठीक है ना? देख लो, लेकिन जो 2.7 वाला होगा उसका भी देखो 1.4 कम हो जाएगा, यानी अब उसका हो जाएगा 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नॉट ओनली दैट, इसमें एक और चीज भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अब जरा समझो वो क्या है। एक और चीज जो इस बार कैलकुलेट किया जा सकता है वही है कि लेट अस से ये सपोज 20 मीटर, सपोज इन दोनों के बीच का जो गैप है वो है सपोज 20 मीटर। तो कैन यू आल्सो नाउ टेल मी कि जो जो जिसका काइनेटिक एनर्जी, मान लो कोई एक ऐसे इलेक्ट्रॉन है जिसका काइनेटिक एनर्जी है 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी वो 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके निकला, ठीक है, 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके निकला। बता सकते हो वो कहां तक जाएंगे बिफोर दे स्टॉप या बिफोर इट स्टॉप्स? जल्दी बताओ। ठीक है, गर्व, अंश, बोथ हैव गिवन द करेक्ट आंसर। ठीक है, कृष्ण ने भी करेक्ट आंसर दे दिया। दैट्स राइट। एक्चुअली इस बार क्या हो रहा है देखो, जो काइनेटिक एनर्जी है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहां तक खत्म हो जाता है और उसमें 20 मीटर लगता है ना। तो 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
खत्म होने में 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म मान के चल रहा हूं। तो देयरफॉर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट खत्म करने के लिए 20 बाय 1.4 और हमारा क्या है 0.35, तो 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए क्या होगा 20 बाय 1.4 इंटू 0.35, यानी जो इलेक्ट्रॉन मान लो किसी वजह से या किसी तरीके से, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से किसी वजह से 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके निकला, 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके निकला, वो क्या करेंगे, वो 5 मीटर तक ट्रैवल करेंगे और उसके बाद रुक जाएंगे। That's the calculation. ठीक है, that's the calculation. Not only that, we can also find out the kinetic energy of any other electron at any other distance also. जैसे ये 2.7 वाला ये 2.7 वाला मान लो यहां से निकला है 2.7, तो 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सपोज मैं कहता हूं कि इसका एनर्जी बताओ एट 15 मीटर्स, इसका एनर्जी कितना है, इसका एनर्जी कितना होगा 15 मीटर्स पे, इसका एनर्जी बताओ। Okay. Ansh has given an answer and so has been given by Garv, लेकिन दोनों का आंसर अलग है। अच्छा नहीं, अब सेम। आर्यंत से 2.025, केता 1.65। देखो सिंपल लॉजिक है, 20 मीटर डिस्टेंस में 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम हो गया है ना, तो 15 मीटर में क्या होगा 3/4 ऑफ दैट, तो उतना मुझे कम करना। यानी मैं क्या करूंगा, ये जो 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला इलेक्ट्रॉन निकला है उसका एनर्जी कम कर दो, कितना 3/4 इनटू कितना 1.4। ठीक है, यानी क्या करेंगे, कितना आ रहा है 1.4.2, 1.05 कम कर देंगे, यानी इक्वल टू 2.7 माइनस 1.0, यानी 1. देख लो। ओके, 1.65 के आंसर्स तो खैर कई सारे आ, ठीक है। नंदिनी अपना थोड़ा कैलकुलेशन ठीक कर लो। Because I had asked you what will be the kinetic energy after it has traveled 15 meters. कौन सा इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन का इनिशियल एनर्जी लेट्स से बाय चांस 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो यानी 1.05 तुमने जो लिखा है 1.05 कम करना, that's the point. So I think rest of the answers are correct. ऋषभ, अरियंत थोड़ा सा गड़बड़ है आंसर, बट आई थिंक शायद कुछ और कैलकुलेशन किया हो, आई डोंट नो। अंश, गौरव, ऋषभ, हाँ कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा, मुझे लग ही रहा। ठीक है, तो 1.65 विल बी द करेक्ट आंसर, एकदम सही। चलो so those were analysis of, इसके बाद पता क्या होता है, एक डिवाइस आता है व्हाट इज कॉल्ड एज फोटो सेल। देयर इज अ डिवाइस कॉल्ड एज फोटो सेल। Now what is exactly a photo cell? Photo cell actually ऐसे एक डिवाइस, इट्स मेड ऑफ ग्लास एंड इवैक्यूएटेड, यानी ये वैक्यूम हो, तो वैक्यूम मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा वैक्यूम कर सकते हो उतना ज्यादा अच्छा। There's a plate out here, there's also a plate out, ठीक है ना, और ये देखो मैंने इसको ज्वाइन किया, ज्वाइन करके यहाँ पे लाइट डालता हूँ,
with frequency greater than threshold. तो अगर मान लो फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड डालोगे तो इन दैट केस कोई इलेक्ट्रॉन्स तो निकलेगा. So therefore electrons will start coming. So this is the electrons. जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल जाएंगे तो यानी ये पॉजिटिव प्लेट हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुंचेंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा. बट ऑब्वियस. चलो अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो रहा है ये यहां से मूव करेंगे इस तरह, यानी दिस विल बिकम द मूवमेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे बिकॉज दे हैव बीन एमिटेड बिकॉज ऑफ लाइट. चलो ठीक है. तो अगर इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज जा रहे हैं दैट मींस ये एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो दिस विल बी आई कॉल्ड एज फोटो करंट. तो दिस आई विल बी कॉल्ड एज फोटो करंट. क्यों? क्योंकि सारा लाइट से ही ड्रिवन हो रहा है. आई थिंक दैट्स ऑब्वियस. चलो ठीक. तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जा रहे हैं तो करंट इधर से इधर जा रहे हैं, सो दैट आई विल बी कॉल्ड एज फोटो करंट. आई थिंक बट ऑब्वियस है ना. अच्छा, इसका नाम सेल क्यों दिया है? देखो सेल उस डिवाइस का नाम दिया जाता है जिसके अंदर करंट को ड्राइव करने का खुद का कैपेबिलिटी, और खुद का कैपेबिलिटी है. जब तक लाइट ऑन है ना तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आ जाएंगे और इधर से इधर फोटो करंट चलता जाएगा. बट ऑब्वियस. अब हम पता है क्या करते हैं, अब हम इसके ऊपर ये जो लाइट है इसका इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं. आई नॉट इज सपोज द इंटेंसिटी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी? है ना, इंटेंसिटी मींस एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड. इसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी. ठीक है. तो इंटेंसिटी अगर तुम बढ़ाते जाओगे तो इन दैट केस पता है क्या होगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और देखना और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते जाएंगे. तो देखो अप्रोक्सीमेटली अगर देखोगे द कर्व विल बी लीनियर. अगर ये आई है और ये आई नॉट है तो दिस इज इंटेंसिटी और ये हो गया फोटो करंट. तो अप्रोक्सीमेटली ऐसे ग्राफ, यानी लीनियर ग्राफ होता है मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, इसका मतलब वैल्यू बढ़ता जाएगा. As I said, there is nothing surprising in that, है ना. चलो लेकिन मैं अब एक काम करता हूं. सपोज मैं क्या करता हूं, इसके अंदर एक सेल डाल दूं और वो भी वेरिएबल. तो ये सेल जो मैंने अभी डाला है ये वेरिएबल सेल, और जरा ध्यान से देखो इसका डायरेक्शन. इट इज हेल्पिंग, देखो अच्छे से, इट इज हेल्पिंग द करंट डायरेक्शन, है ना. यानी कि वो करंट बढ़ेगा. ठीक है. हाउएवर इसमें कैच होता है. क्या कैच होता है? इसमें एक सैचुरेशन आ जाता है. क्यों? जब बहुत इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाता है ना तो इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा हो जाते हैं यहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्मेशन. तो अगर मान लो कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन्स अगर रिमूव किया जा रहा है ना, तो दिस इज फॉर नो क्लाउड फॉर्मेशन. अगर कोई क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तब तो देखना लीनियरली बढ़ता रहेगा करंट. लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा ना, इसमें चेंजेस आ जाते हैं. क्या चेंजेस आते हैं, दैट इज समथिंग दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है ना. तो अगले क्लास में हम लोग अगर कभी भी कंबाइंड होता है या देखेंगे जैसे भी हो पाएगा, तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे ना, इसके ऊपर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि इसके ग्राफ्स कैसे बने. ठीक है ना. आज अनफॉर्चुनेटली वी जस्ट गॉट वाइंडेड अप विद द टाइम. ठीक है ना. चलो आज इतना ही करते हैं. इसका जो बाकी फॉलो अप डिस्कशन है वो हम लोग अगले दिन. ठीक है. चलो हैव अ गुड डे. बाय बाय.